nucleus having mainly protons and neutrons. They are known as average mass of one nucleon is called one atomic mass unit or one AMU or simply 1 unit 1 U. All the scientists agreed for the carbon isotope because having 1 mole mass of carbon 12 exactly 12 grams. So mass of 1 mole of carbon isotope having Avogadro numbers nuclei or atom. Mass is exactly 12 grams. So one nucleus means Avogadro number के बराबर न्यूक्लियाई हैं. तो वन न्यूक्लियस का मास कितना होगा जिसमें 12 न्यूक्लियस 12 डिवाइडेड बाई 6.02 इन 10 ग्राम. वन न्यूक्लियस मीन 12 न्यूक्लियंस. और 12 न्यूक्लियंस का मास कितना वन न्यूक्लियन का डिवाइडेड बाई 12 कैंसिल आउट. यानी 1 mu का मास क्या हो गया रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर बट इन ग्राम. अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 1000. सो 1 mu कमिंग हियर बाई कैलकुलेशन 1.6602 into 10 power minus 27 or 1.66 into 10 power minus 27 kg. 1 mu मास का मास है 1 mu is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg. It is also called 1 U, 1 unit. Mass of 1 proton है 1.67 into 26 into 10 power minus 27 kg and 1 neutron mass is 1.6749 into 10 power minus 27 kg. And 1 AMU mass, average mass is less than both mass of proton and mass of neutron. The reason behind here is inside the nucleus that is very small size में इनको bind करना. So there is some mass is lost that is called mass defect which is converted into energy called binding energy. So this is the binding energy responsible here to all the nucleons, holding all the nucleons in very tiny space called nucleus. Now suppose 1 AMU mass को अगर हम कन्वर्ट करें बाइंडिंग एनर्जी में then formula here is binding energy delta m into c square where c is the speed of light and delta m is called mass defect. So here binding energy m mass 1 AMU को कन्वर्ट करा रहे हैं तो 1.66 in 10 power minus 27 to c square c speed of light from joule to million electron volt हम इसे डिवाइड कर देंगे 1.6 in 10 power minus 13 से. So that comes here 1 AMU mass की बाइंडिंग एनर्जी इक्विवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब भी न्यूमेरिकल में 1 AMU मास लेंगे डायरेक्टली कन्वर्ट लिख देंगे इसका कन्वर्जन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. There's no need to calculate it. Now come to size and the volume of nucleus. We know volume of the nucleus is directly proportional to mass number. So volume directly proportional to A, R cube is directly proportional to A, R is directly proportional to A to the power 1 by 3. एक हमने कांस्टेंट लगा दिया नॉट दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल कांस्टेंट. इसकी एम्पेरिकल वैल्यू है 1.2 फर्मी और 1.2 into 10 power minus 4. न्यूक्लियर डेंसिटी द टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. एक का मास है स्मॉल m 1 AMU मास इंटू मास नंबर ऑफ इॉन्स. टोटल मास हो जाएगा m इंटू a अपॉन वॉल्यूम. तो आर की जगह हम लोग लिखेंगे वाला फॉर्मूला आर नॉट ए टू पावर 1 by 3 का क्यूब कर दिया तो ये ए रह गया. ए से कैंसिल हो. ये न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई 3/4 m अपॉन पाई आर नॉट का क्यूब. सब कुछ कांस्टेंट है इसमें. दिस क्वांटिटी in nuclear density is constant. Putting all the values here m are not after calculation की वैल्यू हो जाएगी 2.29 10 पर 17 kg per meter cube और 3 10 पर 17 kg per meter cube. This is very large, very large constant quantity and this is the maximum. Now come to isotope. In isotope Z is same, is different. Here are the examples of hydrogen isotope, carbon isotope, oxygen isotope, helium, uranium. Where Z is same, A is different. In isomers, A is same, Z is different. Examples of argon, calcium, calcium. Here Z is different but A is same 40-40-40. Like say for carbon and nitrogen, tritium, helium, oxygen and fluorine. These are the examples. Isotone where
A is different, Z is different, but number of neutrons A minus Z is same. So examples of acetone, carbon, nitrogen, oxygen. Here Z and A are different, but A minus Z is same. Here boron, carbon, lithium, beryllium, tritium, helium. ये एग्जाम में आते हैं, सेग्रीगेट करना है या डिफाइन करना आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन with at least one or two. But repeated question board में अक्सर आते हैं. Now very important here derivation of expression of binding energy. You know binding energy के लिए पहले हमने ये nomenclature देखना है. Me mass of electron, Mp mass of proton, Mn mass of neutron, M capital N suffix mass of nucleus, and mH mass of hydrogen atom, and this is the mass of any atom. Binding energy of nucleus is delta M into डेल्टा M को बोलते हैं हम मास डिफेक्ट ऑफ लाइट. अब न्यूक्लियस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? ऑल प्रोटॉन्स, ऑल न्यूट्रॉन्स, कंबाइंडली मास ऑफ न्यूक्लियस. सो total mass of protons ZMP plus total mass of neutrons A minus ZMN, and this is the combined product mass of nucleus. So this equation 1 is correct. Binding energy of nucleus given by equation 1 is correct. But this is the problem. Mass of nucleus, it is very small. It is very difficult to find the correct value. So we have to convert mass of nucleus into mass of atom. We'll discuss here. Binding energy of electron in hydrogen atom. Binding energy of electron is very less. Given by in hydrogen atom 1 proton only plus 1 electron, and product होगा इसका mass of hydrogen atom c square. Binding energy electron very less, c square से divide किया तो neglected कर बहुत कम हो जाएगा. So it is 0. Mp plus Me minus Mh 0. Mp plus Me is equal to M. 0 था, Mh को. Equation 2. Similarly, for binding energy for any atom upon C square, this is also 0. Mass of nucleus plus Zme minus product mass of atom. ये भी 0 है तो Mn plus Zme is equal to mass of atom. Equation 3. हम equation 2 को 3 को equation 1 में यूज कर रहे हैं. तो equation 1 को फिर से लिख लिया हमने. Zmp plus A minus Zmn minus M is the mass of nucleus, is the mass of neutron. यहाँ पे हमने Zme और Zme को ऐड किया, Zme को सब्ट्रैक्ट किया तो नो प्रॉब्लम. लेकिन कॉमन Z Mp प्लस Me या माइनस कॉमन लेंगे N प्लस Zme. क्वेश्चन 2. Mp प्लस Me की जगह था Mh मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस Zme की जगह था मास ऑफ एटम. यहाँ भी क्वेश्चन 4 बैटरी क्वेश्चन हो गई. देन 1 देन बिहाइंड अगेन ये मास ऑफ एटम इजीली निकाल लेंगे. फर्दर एनर्जी है, दिस नॉट सो इम्पोर्टेंट. एनर्जी पर न्यूक्लियन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हमने मास नंबर न्यूक्लियन से डिवाइड किया. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ए से डिवाइड कर दिया क्वेश्चन 5 को 4 क्वेश्चन 5 होगा. ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. देखते हैं कैसे. तो हमने प्लॉट कर लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर. ये ग्राफ आ गया. हियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है. यानी दिस जोन हाइड्रोजन टू रफली दिस up to 20 like is less than 20, mass is less than 20. ये जोन अनस्टेबल है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. ये भी अनस्टेबल जोन है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी अगेन कम है per nucleon. But this is the zone here which is most stable because binding energy per nucleon is quite high. Whereas सबसे ज्यादा किसका है? binding energy per nucleon सबसे ज्यादा है binding energy of iron. So this is the most stable. एक और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. इवन कंपेयर कर सकते हैं स्टेबल में भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है. स्मॉलर न्यूक्लियाई को अगर हम फ्यूज करके बिगर न्यूक्लियाई लाते हैं द लाइक पीक हीलियम कार्बन, दे आर मोर स्टेबल देन नेबर्स. तो हाइड्रोजन को अगर हीलियम में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूज कर देंगे एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड. सिमिलरली हैवियर न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, इसको हम बेरियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, फ्रांसियम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो भी हमको एनर्जी रिलीज होगी. फ्यूजन लेस एनर्जी इन फ्यूजन, मैक्सिमम डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे रफली 1 एंड से समथिंग 29 और 7. तो रफली 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन का हमारा डिफरेंस है. यहाँ पर डिफरेंस यूरेनियम का और इनमें जो फ्रेगमेंट्स हैं रफली 0.9 के करीब. तो हम फ्यूज कर देंगे स्मॉल न्यूक्लियाई को बिगर में और फ्यूजन को अगर हैवी न्यूक्लियाई को अनस्टेबल को
स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमको एनर्जी मिलेगी. So this graph is very informative. Like say some features, key features of this graph or curve. Low mass is less than 20. Here with say sharp peak points. Stable even clear. Say like hydrogen 2, 4, 6, 12 and 8, 16. ये कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है. इवन न्यूक्लियाई मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखा इस रेंज का 56 आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है. हाई मास ए मोर देन 60. स्लोली डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन एनर्जी 7.6 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ऑफ से यूरेनियम 238. ग्राफ में भी देख रहे हैं यहाँ पहले बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, स्टेबल जोन हो गया ये, और इसके बाद धीरे धीरे बहुत स्लोली डिक्रीज हो रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में. एक क्वेश्चन आता है कई बार confusing question sometimes. Uranium 235 unstable. Uranium and fissionable also. Whereas uranium 238 is stable. का दो रीजन होगा. Number of protons and number of neutrons. Nuclear force is attractive and repulsive depending upon the distance. Nuclear force क्या distance dependent है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता. जैसे प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई ऐसा फोर्स नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रल है तो कोई इसमें रिपल्सिव फोर्स का चांस नहीं. मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर एंड मोर स्टेबिलिटी. इन यूरेनियम 235 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑड हैं. 235 माइनस 92 143. इन यूरेनियम 238 माइनस 92 दैट इज 146. तो इवन स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इवन ऑड में स्टेबिलिटी नहीं है. फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 की बात करते हैं, इवन ऑड पेयर नहीं बन पाते. पेयर नहीं बनेंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स ज्यादा नहीं है, पेयर बन जाने से अट्रैक्शन. तो यूरेनियम 238 मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू यूरेनियम 5 वेयर हियर ऑड इवन 238 even and even odd. That's why it's unstable. This is stable and uranium 235 unstable. Yes. फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं सन में. सरफेस का टेम्परेचर है 6000 केल्विन. कोर टेम्परेचर इज वेरी हाई, करीब 1 करोड़ है, 1 करोड़. फ्यूजन रिएक्शन स्मॉलर न्यूक्लियाई को हमने कन्वर्ट कर दिया. फ्यूजन रिएक्शन में स्मॉलर न्यूक्लियाई को हमने केवल तक कन्वर्ट कंबाइन करके फ्यूज करके हमने पीक्स निकाल लिए और यहाँ पे हमको मिलेगा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी. हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम. इट इज एट वेरी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर. यहीं पे रिएक्शन फ्यूज ही नहीं होगा, नहीं तो फ्यूज करना हाई टेम्परेचर हाई. इन फ्यूजन रिएक्शन हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम 235 bombarding with neutron converted into smaller fragments like barium krypton प्लस एनर्जी. फ्यूजन के लिए देखेंगे यूरेनियम 235 बम्बार्ड कर दिया न्यूट्रॉन से, कन्वर्ट इनटू 36 ब्रेक होकर बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस एनर्जी. अदर रिएक्शंस आर देयर. जीनॉन में स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हुआ 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी. यहाँ पे टेंथियम एंड ब्रोमीन एंड एनर्जी रिलीज अगेन 3 न्यूट्रॉन. एक यूरेनियम एटम को दे रहा है रफली 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है. लाइक हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया हमने इस तरह से, पॉजिट्रॉन मिला. व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. मास इसका प्रोटॉन जैसे, चार्ज प्रोटॉन जैसे. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रली 1s2 हीलियम दे रहा है प्लस ये ट्राइटियम प्लस प्रोटॉन प्लस एनर्जी पे अल्टीमेटली हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर बहुत ज्यादा एनर्जी है. इट इज पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन सरफेस एंड कोर टेम्परेचर. न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस मीन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग. तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसमें एंटी न्यूट्रिनो. इज कॉल्ड बीटा डिके. इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस से निकलता है तो बोलते हैं बीटा डिके, बीटा पार्टिकल. सिमिलरली प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन plus this is positron, so this is called positive beta decay. The difference here between the fission reactions and fusion reaction, heavy nucleus split into lighter, 2 or more lighter nuclei fuse together and form the heavier nucleus. This is the fusion reaction. Fusion reactions and the thermonuclear neutron is bombarded. Fusion, they are coming closer at very high temperature and pressure. Energy liberated low, energy liberated quite high in comparison. In fusion, products are radioactive. Here are not radioactive. Chain reaction can be controlled. In fusion, chain reaction cannot be controlled. Even
is going on. If it is can be controlled, there is a very large amount of fuel available and it is needed also. तो एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा अगर हम फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख. नॉन न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स is the short range between the nucleons inside the nucleus only. If the distance between the is the distance between the nucleons, it is less than the 10 Fermi and decreasing. So suddenly we say attraction force is increasing by further decreasing at a distance of equilibrium distance or not is equal to 0.8 Fermi. So here net force is 0. Attraction and repulsion. What is less than this? 0.8. बहुत शार्पली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिपल्सिव से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर पी का. जहां पर हम लोग इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं 4 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जिसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल. सम फीचर्स ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स, दे एक्ट लाइक से बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 विद सेम स्ट्रेंथ. दे आर वेरी स्ट्रांग, 100 times stronger than the electrostatic force. Roughly 10^38 times stronger than the gravitational force. The short range central force, center to center, is called central force. It is charge independent, charge पर depend नहीं करता, only distance पर depend करता है ग्राफ. As we can see इनसे distance dependent say it's negligible beyond the 10 Fermi roughly. तो न्यूक्लियस के बाहर इसका फोर्स बहुत कम हो जाता है, ऐसा ही नहीं एक्टिव करता है एट आर नॉट इज इक्वल 10 फर्मी, नेट फोर्स 0. अगर इससे ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन, इससे कम हो गया तो रिपल्शन.